Good evening, students. Welcome to today's class. Today I am here to discuss with you the chapter The Glimpses of the Past. I found that most of the students are unable to join me during the Google Meet classes because of one or some other reasons. So finally, I have decided over here to make some videos for you and upload in the YouTube so that those who have missed the classes would at least be able to study from home. So let us start today's video. This is the third chapter of your NCERT textbook, Glimpses of the Past. Glimpses means झलक. हिंदी में जिसे कहते हैं हम लोग झलक, means we are turning the pages of our history. हिस्ट्री की कुछ पन्नों को हम पलट कर देख रहे हैं कि what is there in it. Okay, what are the remarkable moments we have in our history? What are the significant events that took place in our history? This all will be covered here. Okay, in a nutshell, this is nothing but some of the events that have been taken from the history. Okay, and it has been given in the form of speech bubble, in the form of dialogues, and you will definitely appreciate it and you will definitely find it very interesting. So without any delay, let's move into it. Before you read, here it is written that here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो ये जो है बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि here some pictures are given. Okay, pictorial glimpses means pictures are given here from our history. And that is also from the time period of 1757 to 1857. ओके, ये 100 साल मीन्स ये जो टाइम पीरियड था 100 ईयर्स का जो समय था उसके बीच में जो भी घटना हुई उसकी कुछ झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा. यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिलेगा द मार्टिर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मार्टिर्स? मार्टिर्स मीन्स शहीद जो हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड मार्टिर्स. ओके, द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द कंट्री और द brave hearts of the country who die for our nation, okay, or who sacrifice their life for our nations, they are called martyrs, right? यहाँ पर देख सकते हैं आपकी in the first picture here you can see some very important figures of our Indian politics, like अगर पहली पिक्चर की बात मैं करूँ तो यहाँ पे लता मंगेशकर से सिंगिंग ए सॉन्ग दैट द वेरी फेमस सॉन्ग मेरे वतन के लोगों, ओके, जरा आँखों में भर लो पानी, ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. दैट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग एंड ए स्ट्रॉन्ग लिरिक, okay, that came from the Bollywood, and they dedicated it to the people who had lost their life during the battle with Pakistan. Okay, and on the same dais you can see the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, and then second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri, along with the very dynamic, the iron lady of our Indian politics, Indira Gandhi, also can be seen on the same dais. Okay, right? Here in the second picture here you can see, okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे there you find a lot of pictures of the freedom fighters. Okay, lot of pictures of the freedom fighters, like here you can see means your Subhash Chandra Bose is there on the right side, on the bottom of the right. Okay, then next to him on the left we can see the picture of Mahatma Gandhi Bapu, okay, our father of nation. Then the very first Prime Minister, okay, Pandit Jawaharlal Nehru, Bahadur Shah Zafar Khan, then Rani Lakshmi Bai, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Roy, and Bhagat Singh. These all are very important people as far as our country's history is concerned. These people have done a lot. They have given their best. They have fought with the Britishers. They have fought with the East Indian Company, and they in various ways they have contributed. हम ये नहीं कहेंगे कि इनमें से कौन बड़ा था, कौन छोटा था, कौन महान है, कौन मतलब न्यून है. वी कैन नॉट कंपेयर देयर कंट्रीब्यूशंस. भगत सिंह जितने रिस्पेक्टेबल हैं हमारे लिए, उतने ही हमारे लिए बापू भी हैं और उतने ही हमारे लिए रानी लक्ष्मीबाई भी हैं. तो इन्होंने अलग अलग समय पे एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम दे कंट्रीब्यूटेड एंड दे फॉट विद द ब्रिटिशर्स
and they tried their best to protect the sovereignty of the nation. ओके, इस देश की सार्वभौमत्व को बजाय रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश किया. ओके, आई होप सो यू कैन understand it easily. Now let us come to the next page and try to find out some more pictures over here. In the next page there you find that the company's conquests 1757 to 1849 के बीच क्या क्या हुआ. ये पूरे 100 साल की घटना विवरण दिया गया है. इट्स द एनेक्डोट ऑफ 100 years, राइट. पहले तो देखो कि पहले पिक्चर में आपको दिखेगा कि एक मतलब मैप दिख रहा है, जो कि मैप अभी के इंडिया के मैप से इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एक दिख क्यों रहा है ऐसे? एक्चुअली बच्चों ये मैप थोड़ी सी ऐसा लग रहा है इसलिए कि दिस वॉज द ओरिजिनल इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. दिस वॉज द मैप ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिया वॉज अ ह्यूज कंट्री, इट वॉज अ लार्ज कंट्री. Okay, and you know Pakistan and East Pakistan, which is nowadays called Bangladesh, ये दोनों भी they were also parts of India. ये भी हमारे इंडिया के ही हिस्से थे. in 1940 you know 7 जब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, देन दिस टू स्टेट्स दे गॉट सेपरेटेड. यू नो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया. ओके, दे मीन्स द मोस्ट ऑफ द इस्लामिक पीपल, द इस्लामिक फॉलोअर्स, they demanded under the leadership of Muhammad Ali Jinnah, and they formed a new country after the independence. So in this way our India got divided, clear. And it now from this particular map we can see 3 different countries that have emerged. तीनों अलग अलग कंट्री यहाँ से इमर्ज हुए हैं, जो कि इंडिया है सेंट्रल में. लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान है, और यहाँ पे पश्चिम बंग के बगल में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है. ठीक है. सो ये था इंडिया के मैप. और इसमें देख सकते हैं कि जो इंडियन प्रिंसेस जो थे, ओके, जो इंडियन प्रिंसेस यानी कि इंडिया के राजा महाराज लोग जहाँ शासन करते थे, द प्लेसेस वेयर द इंडियन प्रिंसेस रूल्ड, दैट पार्ट हैज़ बिन कलर्ड विथ येलो. ओके, इट हैज़ बिन कलर्ड येलो. और जो रिमेनिंग जो पिंक कलर्ड से शेडेड पोर्सन है, दैट पिंक कलर्ड शेडेड पोर्सन्स वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. Okay, the Britishers came to India, the East India Company came to India for trading, for business, and they got established, and slowly they started annexing our Indian princes. खास करके उन्हीं को एनेक्स किया उन्होंने, उन्हीं को उन्होंने मारा, उन्हीं को उन्होंने कब्जा किया जिन्होंने उनकी मदद मांगी या जिन्होंने उनको पनाह दिया. Those who tried to take their help or those who gave them shelter. Okay, they started annexing them. सो इनिशियली अगर देखा जाए 1765 की बात करें तो ब्रिटिशर्स की कहीं वजूद नहीं थी, सिवाय 3-4 छोटी छोटी जगहों में. ओके, ठीक है, बिहार और ये जो बंगाल की थोड़ी सी ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जो आज के डेट में सिक्किम वगैरह है. ठीक है, तो ये थोड़ी सी इलाके में है, इनमें इनकी दबदबा था. अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया इट वॉज आवर इंडियन प्रिंसेस हु रूल्ड. अब देखो इस समय में होता क्या है बच्चों, इसमें देखो उसके राइट साइड में जो फोटो दी गई है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट साइटेड? शॉर्ट साइटेड का मतलब ये होता है कि जो दूर के बारे में सोच नहीं सकता, भविष्य के जो देख नहीं सकता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, उसके बारे में कभी समझ नहीं सकता. ओके, कम समझ वाले, कम बुद्धि वाले व्यक्ति हम कहेंगे. ओके, दे वर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, दे डिडंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है. दे हैड नो आइडियाज़ अबाउट इट. दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. इंडियन रूलर्स कैसे थे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है. ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि यहाँ पे यू कैन सी दैट मीन्स प्रिंस इज ऑन हिज थ्रोन, वो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, राजगादी पर बैठा हुआ है, एंड ही इज़ कमांडिंग हिज ऑफिसर्स, वो अपने ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को कमांड कर रहा है. क्या कह रहा है कि गो एंड कॉल दिस इंग्लिश मर्चेंट्स, मीन्स वो इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, यानी कि गो एंड कॉल द इंग्लिश मैन, आस्क देम टू हेल्प मी. ओके, वो राजाबा को मुझे हराना है. आई वॉन्ट टू डिफीट द राजाबा. राजाबा मीन्स अनदर रूलर है, अनदर स्टेट का रूलर है जिसको वो हराना चाहता है. अरे आप अगर उनको हराना चाहते हो, यू गो एंड फाइट विथ हिम. वाई डू यू वॉन्ट टू टेक द हेल्प ऑफ द फॉरेनर्स? वाई डू यू वॉन्ट टू टेक द हेल्प ऑफ द इंग्लिश ट्रेडर्स? ओके, दे वर ऑल लुकिंग फॉर चांसेस, उनको तो चांसेस की आवश्यकता. दे वर ऑल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. ओके, दे वर जस्ट सिंपली वेटिंग फॉर द इन्विटेशन. ओके, simply they were waiting for the chances when means the Indian princes would call them, they would definitely go and they would help them win. और जैसे ही उनको जीतने में मदद करेंगे, तुरंत उसके बाद क्या करेंगे, they would come to a
कंडीशन। उसके बाद वो कंडीशन करेंगे कि हाँ हमने आपको जिताया, वी हैव हेल्प्ड यू टू विन द बैटल, सो नाउ you will be under our control. In this way, the foreigners, the Britishers, they started annexing or they started controlling our Indian रूलर्स। ठीक है, ये तो हमारी इंडियन रूलर्स की शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से हुआ। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, इट वॉज नॉट ब्रिटिशर्स रेस्पॉन्सिबल, रेदर वी कैन से दैट आवर प्रिंसेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यहाँ पे एक लिखा गया, बहुत सुंदर सेंटेंस लिखा गया है, देखो, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स। आवर इंडियन पीपल वर फेड अप, आवर पीपल वर फेड अप, completely fed up due to such constant fight, regular fights. There used to be battle everywhere, throughout the year, throughout the months. Okay, there was, fights were going on, battles were going on. Okay, and there were killings of the innocent peoples. The entire country was, starving. The poor people were not taken care of by the princes. The princes were busy with their royal life, they were busy with their royal family, they were simply busy killing others, and they were self contained. I mean, they were self contained. They never bothered about the poor, never bothered about their subjects. Subjects means unke praja. They never bothered about their subjects. So that is why there was a discontentment in the mind of the people, in the mind of the public. Okay, as far as the इंडियन प्रिंसेस रूलिंग वाज कंसर्न। अब इसमें नेक्स्ट पिक्चर में देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा गया है, द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। इसके चलते क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट फाइट बिटवीन द इंडियन रूलर्स, because of the enmity between the Indian rulers, what happened, one by one, the English speaking people or the East India Company or the Britishers, they started कंट्रोलिंग वन बाय वन, और फाइनली उन्होंने सबको अपने बस में कर लिया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनके साथ लड़ पाए, या जिन बहुत कम रूलर्स थे, जैसे कि टीपू सुल्तान। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हो कि देयर यू कैन फाइंड द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर थे, ही वॉज द सुल्तान, ही वॉज द रूलर ऑफ मैसूरू। मैसूरू जो आज के डेट में मैसूरू सिटी कहा जाता है, मैसूर में उनके गढ़ था। ही वॉज द रूलर देयर, ही वॉज अ ब्रेव इंडियन सोल्जर, ही वॉज अ ब्रेव इंडियन प्रिंस, एंड ही डिड नॉट गिव अप बिफोर द ब्रिटिशर्स। लेकिन बेटा आप मैसूर जाओगे तो उनके गढ़ को देखोगे, यू कैन सी द फोर्ट वेयर ही लिव्ड एक्चुअली, एंड यू कैन ऑल्सो सी द आर्टिलरीज दैट वेर यूज्ड बाय द आर्मी ऑफ हमारे टीपू सुल्तान। although he was very much Indian, although he was very much, he didn't have the much technology, right, with like the Britishers, but still he gave them a befitting reply. उनको इन्होंने नाकेदम कर दिया, एक befitting reply देकर उन्होंने नाकेदम कर दिया था। So all these memories can be seen there. There is a beautiful museum. Okay, मैसूरू में एक बहुत सुंदर म्यूजियम जहाँ पर मैं विजिट किया था, I think in the year 2018 I visited there, and I got immensely blessed to have much more knowledge about Tipu Sultan over there. Okay, right. यहाँ पर देखो और दो पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या चल रहा है देखो, यहाँ पे एक बंदा कह रहा है, फर्स्ट बंदा कह रहा है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। एक कह रहा है कि अरे ब्रिटिशर्स आए तो अच्छा हुआ। ओके, थैंक गॉड कि भगवान ने ब्रिटिशर्स को भेज दिया। ओके, इसमें बीच वाला क्या कह रहा है देखो, लुक एट द सेकेंड वन, व्हाट डज ही से, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, इट इज़ गॉड हु से, ये भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को भेजा, गॉड सेंट द ब्रिटिश। ओके, उनको तब तक समझ में नहीं आ रही थी, क्यों उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने इनको भेजा, ब्रिटिशर्स को भेजा। उनको इसीलिए लग रहा था कि जो इंडियन रूलर्स थे, दे वर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द public, they were incapable of taking care of the people. That is why they thought that when the Britishers came to India, now there is no more war, there is no more battle, everybody has settled, and there is peace in the country, there is no more loot in the country, everybody is afraid of the Britishers. कम से कम उनके चलते लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा मेंटेन हो रहा है। दैट्स वाई द पब्लिक और द पीपल they loved it. And the third one says, the third one, और एक थर्ड बंदा कह रहा है, our destiny is linked with them. एक खास करके यहाँ पे दो तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी बेटा। एक तो राजा महाराज लोग जिनको मतलब ब्रिटिशर्स हेल्प कर रहे थे, वो कह रहे थे कि या दिस ब्रिटिशर्स आर रियली वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी फेथफुल, दे आर वेरी गुड पीपल, द गॉड हैज सेंट देम हियर, ओके, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर प्रोटेक्टेड।
अगर वो नहीं आते तो शायद हमारा राज्य भी दूसरे राज्य वाले ले जाते. सो दैट वाज द थिंकिंग, दैट वाज द थॉट दैट वाज ब्रूडिंग इन द माइंड ऑफ द प्रिंसेस. इंडियन प्रिंसेस के मन में वही चल रहा था. बट ऑन द अदर हैंड, जो हमारे देश की जो प्रजा है वो उनके मन में क्या थी, दैट इज डिफरेंट. ठीक है, रूलर्स को क्या है, इंडियन प्रिंसेस दे वर सेल्फ कंटेन. मैंने जैसे कहा, दे नेवर बोदर्ड अबाउट द पब्लिक, दे नेवर बोदर्ड अबाउट द देयर सब्जेक्ट्स. ओके, दे नेवर बोदर्ड अबाउट द पुअर. ओके, दे सिंपली were worried about their kingdom. They were simply worried about the expansion of their kingdom. They were simply worried about the collection of the revenue and making big forts and riding horses and living a luxurious life. They never ever thought about the public. So my dear children, what do you see here? In the very adjacent picture, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन पीपल बात कर रहे हैं. वो इसको कैसे दिखते हैं कि इंडियन जो ब्रिटिशर्स आ गए उनको कैसे दिखते हैं. देखो यहाँ पे कहता है कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. ये कहते हैं कि इनके मन में उनके राजाओं के प्रति संवेदनाएं हैं. ओके, ये कहते हैं कि हाउ डेयर दिस वाइट पीपल, हाउ डेयर दिस इंग्लिश पीपल, दे हैव किल्ड आवर किंग्स. उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया. दे आर कंट्रोलिंग आवर किंग्स. इट इज़ नॉट गुड. ओके, दे आर फॉरेनर्स. दे डोंट हैव द राइट्स. They don't have the power. They should not come and rule our country. Okay, see, this is how the Indian public viewed it. लेकिन राजा महाराजा लोग उसको तो मजे ले रहे थे और कहते कि आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम. हमारी भविष्य तो इनके साथ जुड़ा हुआ है. ओके, इफ दे स्टे हियर देन वी विल बी सेफ. इफ दे ग्रो देन वी विल ऑल्सो ग्रो विद देम. ओके, सो इट इज द रॉयल पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ओके, यहाँ पे दो लोग और बातें कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ आवर फॉरेनर्स. दूसरा वाला कहता है सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. यहाँ पे देखो मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है लोगों के मन में. लोग कह रहे हैं क्या कि नाउ वी हैव बिकम द स्लेव्स मीन्स नौकर. नाउ वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दिस फॉरेनर्स. नाउ दिस फॉरेनर्स आर रूलिंग अस, दे आर कंट्रोलिंग अस एंड वी हैव टू ओबे देम, वी हैव टू फॉलो देम. Okay, and if we do not follow and obey them, they might kill us like our kings. Okay, so that's why the public was having the fear or was living in a terror, right? And they told that, they do admit, वो यहाँ पे admit भी करते हैं, स्वीकार करते हैं. The public admit that some of the kings and the queens were not good. They never cared for them, but still they think that they have empathy for them. Okay, they are showing empathy. वो इसलिए empathy दिखा रहे हैं कि लेकिन हमारे देश के राजा थे भाई. Why should the Britishers come and kill them? Okay, so this, you just look how the Indian public was very very connected. They were very much connected with the soil and they were very much concerned with the country's sovereignty. Clear? Now let us come to the next page. There you find that ब्रिटिश रूल. अब यहाँ पे देखेंगे 1765 से क्या होता है. 1765 से 1836 के बीच में जो समय था बहुत क्रूशियल था. दैट वाज वेरी क्रूशियल टाइम, वेरी रिमार्केबल टाइम. मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर हियर. रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. ठीक है बच्चों, हमारे देश में ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी गलत प्रथाएं थी. चाइल्ड मैरिज वॉज प्रैक्टिस. ठीक है, अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस. चाइल्ड मैरिज क्या है, छोटे छोटे बच्चों को शादी करवा देते थे. ओके, उन बच्चों को शादी के बारे में क्या है, शादी क्या होते हैं, व्हाट मैरिज इज, व्हाई पीपल डू मैरी, दे हैव नो आइडियाज अबाउट इट बट स्टिल दे वर फोर्स्ड टू मैरी. ओके, बट बड़े होने के बाद उनकी जब शादियाँ होती थी फिर वो मजबूरन उनके साथ ज़िंदगी बिताना पड़ता था. सो दिस ऑल आर नॉट गुड प्रैक्टिसेस. बट स्टिल आवर स्पिरिचुअल लीडर्स, जो हमारे देश के धार्मिक गुरु थे, ठीक है, मंदिरों में मस्जिदों में जो गुरु वगैरह बैठे हुए थे, they practiced all these things. They promoted, they helped the people to go for all these practices. उन्होंने ये भी कहा कि there are 4 classes of people in our country. ठीक है, जिनको उन्होंने क्लास में बांट दिया कि सम पीपल आर ब्राह्मण, सम पीपल आर क्षत्रिय, सम पीपल आर वैश्य, सम पीपल आर शूद्र. और उन्होंने कहा कि शूद्र को तो मतलब मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, विच इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी, जिसको कहा जाता है अनटचेबिलिटी. जिसके चलते हमारे समाज को उन्होंने क्या किया, 4 हिस्सों में बांट दिया. मीन्स ब्राह्मण, जिनको कह दिए ब्राह्मण यू आर द सुपेरियर, तो वो खुश हो गया.
तुम्हारे पास पावर है, तुम जो कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी डिसीजंस ले सकते हो। लेकिन उसी समय जो बेचारा को तुमने नीचे दिखा दिया, मीन्स जिसको आपने कह दिया कि यू आर द अनटचेबल्स, यू कैन नॉट गो टू द टेम्पल, यू कैन नॉट सीट इन द मिड्स ऑफ द पब्लिक, यू कैन नॉट गिव ए लेक्चर इन द, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, यू कैन नॉट गो टू द हायर पोस्ट, इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उनको दबाने की कोशिश की। सो बिकॉज ऑफ दिस आवर सोसाइटी गॉट फ्रेगमेंटेड, हमारा सोसाइटी फ्रेगमेंटेड हो गया, यानी कि इट गॉट divided into fragments, it got divided into small ग्रुप्स, यानी कि यूनिटी जो था पहले, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो थी, इतना बड़ा होने के बावजूद हमारे देश की जो डाइवर्सिटी के बीच में जो यूनिटी थी, दैट वाज अंडर थ्रेट, वो अभी क्या हो गया था, खतरे में था। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखा गया है, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस इज रिलीजन। ये एक देखो, एक साधु बाबा क्या कह रहा है कि अगर कोई समुद्र को पार करता है कि वो उसका रिलीजन, उसका धर्म चला जाएगा। ओके, इट मीन्स दे नेवर अलाउड आवर स्टूडेंट्स टू गो आउट एंड स्टडी। ओके, सो सी व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी दिस पीपल वर मेकिंग, यू नो। और एक बोलता है यहाँ पे साधु, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। एक कहता है कि इस सारी महिलाओं के लिए ही सारी, मतलब इस दुनिया में सारी धरती का सारी बोझ, धरती की सारी प्रॉब्लम, धरती की सारी समस्या का जड़ महिलाएं हैं। You just can't believe it. So nonsense people these were actually. So nonsense talks they used to make. Okay? The truth was that Indian had lost self-respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. ओके, और इन्हीं लोगों के चलते क्या हो चुका था, बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रैक्टिसेस दैट वी हैड इन आवर सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी, ये उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ। अब इनको क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी को तोड़ने में, लोगों को आपस में झगड़ा करने में और भी ज़्यादा आसान हो गई। एंड द ब्रिटिशर्स कुड नाउ इजीली इन्फ्लुएंस द पीपल। ओके, अब ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, अपने पास उन्हीं को लगे जो उनका चमचागिरी करते थे। ओके, क्लियर? इसमें देखो, एक व्यक्ति को देखो, एक इंडियन व्यक्ति है यहाँ पे, दोनों ब्रिटिशर्स बात कर रहे हैं, तो बोले कि और द इंडियंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। इंडियंस को ट्रस्ट मत करना, विश्वास मत करना, वो विश्वास योग्य नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति आके कहता है, इंडियन वाला आके, सर मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, आई एम ऑनेस्ट सर, यू कैन रिलाई ऑन मी, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, आई एम वेरी ऑनेस्ट। तो यू जस्ट सी, उसको तो लात मार के भगाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स हैं, दे वर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, दे हैड कम टू फॉर बिजनेस एंड दे हैड स्टार्टेड रूलिंग, they had dethroned our kings and killed our kings. Okay, but still there were some people, there were some members in our society who were very much loyal to these Britishers, and because of them only the Britishers could stay in our country for a long period of time. Okay, यहाँ पे दूसरी पिक्चर पे देखो, यहाँ पे बगल में, being merchants the British wanted quick profits, their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Okay, वो एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर एक्चुअली बाय बर्थ अगर कहेंगे उनको, अगर हम जन्मजात कहेंगे, तो वो जन्मजात बिजनेसमैन थे। दे हैड कम टू इंडिया फॉर बिजनेस। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी आबादी की देश है, यहाँ कुछ भी लाओ भी दो यहाँ, और इंडिया में बहुत कुछ चीज़ था। ओके, वी आर वेरी मच रिच, हमारे देश बहुत रिच था बच्चों, we were very rich, we had many mineral resources, we had so many things which was exported to other countries. Okay, the Britishers came and took the gold and silver and aluminium and every natural resources were taken from here. Okay, और वहाँ जाके फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। हमारे लेंगे वहीं कपड़े बनाएंगे, हमारे देश से कोल लेंगे वहीं स्टील बनाएंगे। तो इन दिस वे, ओके, सो इन दिस वे वो क्या करते थे, लूटते थे हमारे देश को। ओके, इंडिया को एक बड़ा सा मार्केट मिल गया, इंडिया वॉज बिग मार्केट फॉर देम। सो एंड दैट वॉज व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, और वही चीज़ को ही वो ढूंढ रहे थे। दैट वॉज देयर प्राइम कंसर्न। वो यहाँ शासन करने नहीं आए थे, इन्होंने तो देखा कि यहाँ पे लोग झगड़े कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कि इसका मौके का फ़ायदा उठाया जाए। ओके, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, अदरवाइज दे हैड कम फॉर बिजनेस, दे हैड कम फॉर ट्रेडिंग, दे हैड कम फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। यू सी, देश हमारा है, ज़मीन हमारी है, खेती हमारा है, ओके,
राजा महाराजा हमारे हैं, बट वी हैड टू पे टैक्सेस टू द ब्रिटिशर्स। और टैक्स टैक्स कौन ले रहा है? कोई दूसरा जो इस देश का है ही नहीं, समवन हु हैज़ कम फ्रॉम ए फॉरेन लैंड, समवन हु हैज़ कम फ्रॉम ए फार अवे कंट्री, बट ही इज डिमांडिंग टैक्स फ्रॉम आवर पुअर फार्मर्स, and they made our poor farmers pay heavily. They made them pay heavy taxes. इतने ज़्यादा टैक्सेस, हैवी टैक्सेस वेर मेड टू बी पेड, उनको मजबूर कर देते थे। इसलिए कई लोग तो खेती करना ही बंद कर दिए थे। मतलब आमदनी 8 आने, खर्चा 1 रुपया, यही हालत हो गई थी पुअर फार्मर्स की। मीन्स दे वर नॉट गेटिंग मच प्रॉफिट। मान लो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, देन दे हैड टू पे टैक्स ऑफ 12 रुपीज़। टैक्स लेकिन भरना पड़ता था 12 रुपीज़ का। इसलिए कई लोगों ने तो अपनी ज़मीन तक छोड़ दी। दे स्टॉप्ड कल्टीवेशन, दे स्टॉप्ड फार्मिंग। ओके, क्लियर? तो इस तरह से वो लूटने लगे थे। अब देखो यहाँ पर और एक बढ़िया चीज़ बात है, यहाँ पे देखो, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव them more profit. The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. A good idea. देखो इनको प्रॉफिट क्या है? टैक्स के माध्यम से मिलने लगा। ठीक है, नाउ दे हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम इंडिया। ओके, दे हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द सी। ओके, दे हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द क्रॉप। हर चीज़ों से टैक्स कलेक्शन कर रहे थे। ओके, एंड जो कि इलीगल था, कंप्लीटली इलीगल था। दे वर नो वन, दे हैड नो राइट्स टू collect our taxes. Nobody had authorized them. Okay, they authorized them, सब उन्होंने अपने आप को ऑथराइज किया। they empowered them, सब उन्होंने अपने आप को पावरफुल दिखाया, and they started collecting it. और इतने में भी पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो उन्होंने किया क्या? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखते हैं? The goods manufactured in England, the goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ से मान लो लेके गए कटन, कटन लेके गए, when cotton was transported to लंदन, लंदन में उन्होंने क्या किया? कटन से फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए, यानी कि टी शर्ट बनाए, जीन्स बनाए, पैंट बनाए, ट्राउजर्स बनाए, शर्ट्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए, वेस्ट्स बनाए। सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स वेर मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अभी कहाँ बेचना है? पहले तो हमारे यहाँ के फार्मर से मार मार के, पीट पीट के, उनको मतलब गरीबी में दबोच दबोच कर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे मेड देम टू ग्रो कॉटन। ओके, उनको कटन, खेती के बदले उनको जो अनाज उगाते थे उसके बदले उन्होंने बोला कि तुम कटन उगाओ, वी विल पे फॉर यू। ठीक है, ज़बरदस्ती कटन उगवाया, उस कटन को कम दाम में खरीद के, ओके, दे गॉट इट एट ए वेरी लो प्राइस, एंड दे टुक इट टू लंदन। लंदन में जाके मशीन्स में दे मेड टी शर्ट्स, जीन्स, ऑल दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब उन्होंने फिर सोचा कि फिर से लूटे इंडिया को। एक बार तो गरीबों को लूट चुके हो, फिर दे स्टार्टेड लूटिंग इंडिया। और एक ऑफिसर यहाँ पे क्या बोल रहा है? द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम, विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम लंदन शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी इन इंडिया। इंडिया में उसका कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? वैसे भी इतने दूर से आएगा तो फिर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दोगे तो उसके ऊपर महंगी हो जाएगी। तो उसने कहा कि भाई इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी मत लगाओ। इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओगे देन द इंडियन पब्लिक वुड स्टॉप बाइंग योर प्रोडक्ट। तो उसने सजेशन दिया कि वी शुड नॉट हैव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तब जब से ही इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म, देन द फॉरेन प्रोडक्ट स्टार्टेड फ्लडिंग आवर इंडियन मार्केट। वो सीधे आके इंडियन मार्केट में फ्लड की तरह, मतलब जैसे कि बाढ़ आ जाता है उस तरह से अमेरिकन इंग्लिश प्रोडक्ट्स हमारे देश में भर गया। ओके, तो हमारे देश के जो छोटे छोटे कारीगर जो बनाते थे, जो कपड़े बुनते थे, साड़ी बुनते थे, लुंगी बुनते थे, नाउ देयर इंडस्ट्री केम टू ए हॉल्ट। पूरी तरह से बंद हो गया। इट स्टॉप्ड कंप्लीटली। दे डिड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ demand in the market. Now the people were getting attracted towards the British products. The people were getting attracted towards the finished products of the London. Okay, and in this way they killed the artisans, they killed the workmen, and they killed the cottage industry of India. ठीक है, अब देखो, a good job, इसने क्या कहा? A good idea sir, very good idea. He supported it. The East India Company's laws begin to cripple Indian industries. मैंने जैसे कहा, because of this law particularly, when the import duty was removed
from the product which was being brought to India from London, then lot many products were brought to India. The businessmen, they could easily sell their product in India. Okay, there were no barriers, there were no challenges, there were no problems for them. It was just like a English market for them. So they started selling, and because of that, the greatest sufferer were our Indian प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स थे, दे सफर्ड ए लॉट. उनकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट कोई और नहीं खरीदा. यहाँ पे देखो, बगल में देख सकते हो कि गरीब एक व्यक्ति है. ओके, द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस. आर्टिसंस मीन्स कलाकार. कलाकार मीन्स क्या होते हैं बच्चे? हमारे देश में बहुत सारे कलाकार थे जो इनको इतनी कारीगरी थी, इनकी कारीगर कहते हैं, इनको कारीगर कहते हैं, कलाकार नहीं कारीगर कहते हैं. इतने सारे आर्टिसंस थे कि उनमें भरी हुई थी, टैलेंट तो भरी हुई थी. Okay, India was a place where it was found, there were thousands and millions of cottage industries existed in every small cities also. But unfortunately, because of this policy of the English people, all the cottage industry came to a halt. अब उसके बाद हम चलेंगे next class में. We'll move in the next class. We'll discuss about the next portion. So that's all for today. Thank you.